Hello everyone. So in our previous video we discussed the geometry and shapes of molecules. So the geometry is the definite relative arrangement of bonded atoms in a molecule. So it provides a definite geometry or shape of the molecule. So the shape and geometry of the molecule is suggested by valence shell electron pair repulsion theory, that is abbreviated as VSEPR theory. So this theory is used to predict the shape of the molecule from the electron pairs that surrounds the central atom of the molecule. So here central atom is, if we talk about central atom, if we write CH4 here, CH4. So in this central atom is carbon. So this is the compound of carbon. CH4 is the compound of carbon and central atom is carbon here. So further we will discuss more examples. So this theory is used to predict the shape of the molecules from the electron pairs that surround in the central atom of the molecule. And the theory was first presented or proposed by Sidgwick and Powell in 1940. So VSEPR theory is based on the assumption that molecules will take a shape such as electronic repulsion in the valence shell of the atom, which is minimized. So actually what is VSEPR theory? First we discuss about this valence shell. So V stands for valence shell electron pair repulsion theory, and this theory suggested the repulsion between different electron pairs. So VSEPR is all about VSEPR theory is all about electron pairs, electron pairs, and electrons pair are of two types. One is bond pairs, those who are form bonds, and second is lone pair, those who are forming lone pairs. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दो तरीके से हम बोलते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर्स मींस बॉन्ड पेयर मींस जिससे बॉन्ड फॉर्म्स होते हैं, जैसे CH4 में 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा तो वो बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो वो उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और जो बॉन्डिंग में मतलब बच जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर्स। तो किसी एग्जाम्पल्स के साथ उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। Then these are different shapes or geometries of molecules which can assume. So if the number of electron pairs are only 2, for 2 it is linear geometry is like this, linear geometry. If it is 3, then it is trigonal planar. So first we must learn all these. If we can use the term here steric number, or we can simply write if the number of electron pair around the central atom is 2, 3, 4, 5 like this. For example, if we talk about PCl5, so P, phosphorus is central atom here, and phosphorus is surrounded by 5 Cl atoms in this way. This is phosphorus, Cl, 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 Cl and Cl. In all positions, chlorine atom is present in this way. So it gives a definite geometry here, and this geometry is known as trigonal, triangle-like structure, trigonal, bipyramidal. So it is depend upon the number of bond pairs. So these are bond pairs which are forming bonds. So there are different geometries for that, and first we must know the
steric number or the number of electron pairs around the central atom. If the electron pair is 2, means that is in the case of BeCl2. Here beryllium is central atom and 2 Cl are attached in this way. तो बेरिलियम के साथ क्लोरीन एटम कैसे भी आप अटैच करो वो बनाएगा तो लीनियर शेप ही, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें चाहे आप बेरिलियम को ऐसे रिप्रेजेंट करें, बट इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लीनियर ज्योमेट्री. Similarly, we have different geometries here: linear, trigonal, planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal, and octahedral. So later we will discuss one by one. And these are the postulates of VSEPR theory. So already we discussed this in previous video, the postulates related with VSEPR theory. So in polyatomic molecules, means in which more than 2 atoms are present with central atom. These are polyatomic molecules. So one of the constituent atom is identified as central atom, to which all other atoms belonging to the molecules are linked. The total number of valential electrons decides the shape of the molecule. So this is very tricky. So I'll give one trick for that. एक आप ट्रिक अप्लाई करिए, उससे आपको डायरेक्टली शेप्स पता चल जाते हैं. जैसे सबसे सिंपलेस्ट केस में अगर हम देखें, इन केस ऑफ CH4 हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. अभी हमने CH4 का एग्जांपल लिया है. तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग. तो ट्रिक ये है कि इसमें सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लिख सकते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं? 4. और उनमें से कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो रहा तो ये सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है तो यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म कर दिया. तो बॉन्ड अगर फॉर्म होगा तो आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो लेफ्ट होंगे वो कुछ भी नहीं होंगे, यानी 0 आएगा आंसर. तो जो कुछ भी नहीं बच जाता उसको हम कहते हैं लोन पेयर्स. और जो फॉर्म हो रहे हैं, जो इसके साथ अटैच्ड हैं, वो होते हैं आपके बॉन्ड पेयर्स. तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के आपका इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाता है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? दैट इज इक्वल्स टू 4. तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, इतना याद रखना पड़ता है. मतलब ये एक ट्रिक है. ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमें ईजिली आपको क्या पता चल जाएगा कि उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप क्या होगा. तो उसके लिए हमें पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे तो लीनियर होगा, अगर 3 होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा जैसे इस केस में हुआ, देन 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 7 होंगे तो पेंटा. तो 7 तक ही हम पढ़ते हैं अभी 11th की कोर्स स्टडी में. तो हम इसको मतलब ट्रिक्स के बेसिस पे भी समझ सकते हैं. So the electron pairs have tendency to orient themselves in a way, because कुछ postulates ऐसे भी हैं जिनमें मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आपका जो होता है वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में होता है. तो बहुत कॉमन सेंस है कि जो आपका रिपल्शन होगा लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर. बिकॉज बॉन्ड पेयर अगर फॉर्म हो गए तो बॉन्ड्स ही अगर बन गए हैं तो रिपल्शन होगा कैसे. तो सबसे ज़्यादा अगर रिपल्शन अगर होगा, अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा? आपका लोन पेयर में और लोन पेयर में. ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें लोन पेयर हो. फिर दूसरा कॉम्बिनेशन होगा आपका तो होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में. और सबसे कम जो होगा वो होगा आपका बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बिकॉज बॉन्ड पेयर्स आर नॉट फॉर्मिंग रिपल्शंस. तो सबसे लीस्ट होगा. तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें ज्योमेट्री ऐसे सेट करनी पड़ती है कि रिपल्शन को मिनिमाइज करा जाए. ये इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट है, मेन पॉइंट है.
and the valence shell can be thought of a sphere wherein the electron pairs are localized on the surface in such a way that the distance between them is maximized. तो इसके कारण आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो फिक्स बनेगी. तो हमारे पास फिक्स ज्योमेट्रीज होती है, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब माइंड यूज़ नहीं करना है, बट ट्रिक्स अप्लाई करनी है कैसे आइडेंटिफाई हमें करना है. हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बस वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसका इलेक्ट्रॉन पेयर या स्टेरिक नंबर इतना आया है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी. तो ये तो कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं. लिमिटेशंस भी हैं इसमें. दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसमें आपका स्पीशीज़ में वेरी इन शेप्स डिस्पाइट मीन्स अगर जिसमें सेम नंबर आए, जैसे अगर माना आपका स्टेरिक नंबर 4 आता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें 4 सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ना हो, कोई लोन पेयर भी प्रेजेंट हो. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे. एंड सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या है कि VSEPR थ्योरी डज नॉट shed any light on the compounds of transition metals. ट्रांजिशन मेटल्स मतलब जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं. तो उनके जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में कोई कुछ मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बता पाया है VSEPR थ्योरी. बट आगे की थ्योरीज में उन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री भी हम स्टडी करते हैं इन नेक्स्ट क्लास, इन 12th क्लास. So the structures of several such compounds cannot be correctly described by this theory, and this is because the VSEPR theory does not take any account of the associated size of the substrate groups and lone pairs that are inactive. So another limitation of VSEPR theory is that it predicts the halide of group second elements will have a linear structure, whereas their actual structure is a bent structure. So it depends. तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं थ्योरी की, वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं. और किस तरीके से हम प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स का हम अगर शेप प्रिडिक्ट करेंगे तो द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड टू ऑर्डर टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. सो ये तो सिर्फ उस पर डिपेंड है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर करते हैं. बिकॉज जैसे एग्जांपल के फॉर्म में माना आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल H2O. अब हमें इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रल एटम H नहीं होगा. इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इवन ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो वो सेंट्रल एटम होगा. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 2-6. तो 6 में से अगर सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा अगर, क्योंकि वाटर आप कैसे भी ज्योमेट्री उसकी बनाए, क्योंकि रिप्रेजेंट करना तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है. एक्चुअल में जब हम इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लिख देते हैं H2O, HOH. पर क्या ये इसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री होगी H2O की? दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ H2O, क्योंकि हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स दिखाई ये पर उसमें तो आपके क्या है, लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है. तो 6 - 2 अगर हम करेंगे तो कितना बच गया? 4. तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो पेयर कितने हो गए? पेयर मतलब 1 पेयर इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन होता है. तो 4 अगर बच रहे हैं तो पेयर में हो जाएगा वो इन केस ऑफ H2O. 4 अगर बच रहे हैं तो वो 2 लोन पेयर हो गए और 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर. तो टोटल कितना हो गया? 4. तो 4 स्टेरिक नंबर किसका होता है? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का. तो हमें सिर्फ यही याद करना पड़ता है इसके लिए. टेबलेशन, एक टेबल जो मैंने दी थी उसको याद करना पड़ेगा. तो और बेसिक स्ट्रक्चर्स. तो 4 अगर होगा टेट्राहीड्रल तो कुछ इस तरीके की H2O की ज्योमेट्री बनेगी. सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन होगा
और हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से, बैंड शेप आता है, पर टेट्राहेड्रल होती है तो इसको लोन पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट्स दिखाते हैं ये लोन पेयर। तो दिस इज द ज्योमेट्री फॉर वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका आया VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर। अगर 2 होगा तो क्या होगी ज्योमेट्री, 3 होगा तो क्या होगी, 4 5 6 7। ये याद करना सबसे ज़रूरी है आपका। अगर आपको ये याद होगा तो आप बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, बाकी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स रेडी रहेंगे, कहीं पर भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। देन लीनियर शेप है, जैसे एग्जांपल आपको ये दिया है, हमने डिस्कस कर लिया था बेरिलियम फ्लोराइड में। बेरिलियम में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो लोन पेयर कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बोरोन फ्लोराइड में होगा। ये टेट्राहेड्रल CH4 का दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके कोर्स स्टडी के अकॉर्डिंग। ट्राइगोनल पिरामिड में इन्होंने एग्जांपल नहीं दिया, बट एग्जांपल इज PCl5 एंड मैनी मोर। कोई भी आप ऐसे एग्जांपल्स उसमें ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द VSEPR theory. In next video I will more focus on this and give tricks again to know the geometries of the molecule in exact basis on the basis of VSEPR theory. तो सारी ट्रिक्स के बेसिस पे ही है, आपको ज़रा सा ध्यान देना है।